Namaskar, welcome to SGKG YouTube channel classes, and now we are discussing about manual of office procedure. And in manual of office procedure, in this session we are going to discuss about knowledge management. It's a new concept, new chapter, and probability of coming into examination is more. So let us see what is knowledge management. So while discussing about knowledge management, we will be discussing about aids to processing, note for successor, standard process sheet, standing guard file, standing note, precedent book, reference folder, induction material, master circular. See, these all are very much important from MCQ point of view. Out of these, one or two question may come in the form of MCQ. A standing note means, precedent book means, master circular means. So MCQ will come like this. So be ready to understand all this small, it's a small terminology, and we have to understand. We are not going in deep, it's only understanding of the terminology. और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वे लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपको ऐसा लगता है कि हमारे क्लासेस आपके 5% 10% भी काम में आ रहे हैं, आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो आइए देखते हैं नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। नॉलेज मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग and managing the knowledge and information of an organization. So knowledge management क्या है? It is a process of creating, sharing, using and managing the knowledge and information of the organization. Organization के बारे में जो कुछ भी information है उसमें कुछ लोग क्रिएट करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कुछ यूज करेंगे, कुछ मैनेज करेंगे, और उन्हीं को क्या करते हैं, उसी शेयर मैनेजमेंट को नॉलेज इन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कोई क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? शेयर कर रहा हूँ। जो डिपार्टमेंट के लिए इन्फॉर्मेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन को एक आसान तरीके में ढाल करके मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। सो इनडायरेक्टली आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ knowledge management. It refers to a multidisciplinary approach to achieve organizational objective by making the best use of the knowledge. जब तक हम नॉलेज शेयरिंग सही तरीके से नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होने में प्रॉब्लम होते रहेंगे। नॉलेज मैनेजमेंट इज़ देयरफॉर एन इनेबलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग। सो बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको हम नॉलेज जिसका गेन करके और उसके बेसिस पे अपने सर्विसेज हम इम्पार्ट करते हैं। अ नॉलेज मैनेजमेंट डैशबोर्ड शैल बी सेट अप इन द ई ऑफिस एनवायरनमेंट बाय एवरी सेक्शन यूनिट डेस्क विच विल प्रोवाइड एक्सेस टू एड्स टू प्रोसेसिंग एज इंडिकेटेड इन द चैप्टर। सो ए नॉलेज मैनेजमेंट डैशबोर्ड शैल बी सेट अप इन ई ऑफिस एनवायरनमेंट. So this is the clear direction that knowledge management dashboard shall be set up in e-office environment. MCQ question. तो जो नॉलेज इन्वायरमेंट है इसमें क्या है, इसमें एड्स टू प्रोसेसिंग होता है। एड्स टू प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इट्स ए टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. सो एड्स टू प्रोसेसिंग आर टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट यूज्ड इन द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट. सो ये क्या है? टूल्स ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट है। नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स कौन कौन से होते हैं? जो टूल्स होते हैं उन्हीं को एड्स टू प्रोसेसिंग कहते हैं। एनी मैकेनिज्म दैट हेल्प्स an officer to learn his her area of work in examination and disposal of a case is an aid to processing. They are more effective in maintained, they are more effective if maintained electronically. So examples of aids to processing क्या है? Tools of management क्या है? Tools of knowledge management. Notes for successor, standing process sheet, standing guard file, standing note, precedent book and reference folder. So let us learn one by one this all terminology. Note for successor.
Movement of officers from one post to another post by way of promotion, transfer, deputation is a part of functioning in any organization. ठीक है, movement होता रहता है. movement में भी movement of officers are part of the service, part of the organization, and movement takes place by virtue of promotion also, by virtue of transfer also, by virtue of deputation also. It is the responsibility of the organization to ensure that relevant induction material is provided to the new incumbent to enable him or to perform duties to the best of his ability. So क्या करना है, नए पोस्ट पर जब भी हम जाएंगे तो नए पोस्ट पर हम नए रहेंगे. जब हम नए रहेंगे तो ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि हमारे पास जो मिनिमम जो रिलेवेंट इंडक्शन मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराया जाए. हमारे पास जो रिलेवेंट इंडक्शन मटेरियल है उसको प्रोवाइड कराया जाए ताकि हम वहाँ के वर्क कल्चर को, वहाँ के वर्क रिक्वायरमेंट को समझ सकें और अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म कर सकें. Even though in government organizations all the required information is available in files, predecessors also play an important role in passing a statutory memory. Guidance provided by a predecessor needs to be documented to ensure easy and ready access. एक तो हम लोग जब हैंडिंग टेक ओवर करते हैं तो चार्ज रिपोर्ट भी होता है. उसके अलावा ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फाइल्स होते हैं. फाइल्स में सारे वर्क किए रहते हैं. पिछले जितने भी रिकॉर्ड हैं वो सारे फाइल में हैं. तो आगे का जो भी हम उसमें प्रोग्रेस करेंगे, आगे का जो भी हम एक्शन करेंगे वो पीछे वाला जो पेपर्स हैं, पीछे वाले रिकॉर्ड्स हैं, उनको देख करके करेंगे. इट विल वर्क एज ए गाइडेंस. इट इज़ नॉट डायरेक्शन, इट्स अ गाइडेंस. Note for successor from his or predecessor is an important tool to keep the work progress in flawless manner. Such a note should be prepared in a structured manner incorporating all the inputs so that the successor could discharge their duties more efficiently. So क्या है, नए पुराने वाले साहब वहाँ से चले गए, वहाँ पे नए वाले साहब आ गए. तो गवर्नमेंट सेटअप में तो मोर और लेस नेचर ऑफ वर्क सेम होता है. फिर भी क्या होता है कि काम ऐसा होना चाहिए कि चाहे प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे डेपुटेशन हो, कुछ भी हो, उसके बाद में जो ड्यूटी है वो फ्लॉलेस मैनर में चलती रहनी चाहिए. फ्लॉप नहीं हो जाना चाहिए. एक साहब गए और उनके साथी डूब गई, ऐसे नहीं करना है. बहुत साहब ऐसे भी होते हैं जो फाइल फोल्डर अपने पता नहीं कहाँ सीक्रेट प्लेस में रख लेते हैं. शायद उनके नहीं रहने के बाद से उस दिन बहुत परेशानी होती है. किसी को फाइल नहीं मिल रहा, किसी को फोल्डर नहीं मिल रहा, किसी को कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं मिल रहा. ऐसा नहीं करना है. हमें इस तरीके से सर्विस ड्यूटी करनी है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी करनी है कि किसी कारण से अगर हम वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं तो काम नहीं रुकना चाहिए, वर्क नहीं रुकना चाहिए. सम अदर पर्सन शुड डू द वर्क. हमें कोई स्पाई वाला काम नहीं करना है, हमें कोई बहुत सीक्रेट वाला काम नहीं करना है. जो साहब आ रहे हैं वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, तो उस साहब को पासवर्ड पता होना चाहिए, उस साहब को आपका फ़ाइल पता होना चाहिए, उस साहब को आप मेल कहाँ रखते हैं वो पता होना चाहिए. अगर सब कुछ आप इनकोडेड करके रख देंगे, इनक्रिप्टेड करके रख देंगे, आगे वाले साहब के लिए परेशानी हो जाएगी. बहुत लोगों के पास ये टेंडेंसी होती है कि अगर मैं ना रहूँ तो ऑर्गेनाइजेशन ही ना चले, मैं ना रहूँ तो सेक्शन ही बंद हो जाए. इस भ्रम में ना रहें. ये धरती वीरों से भरी हुई है. हमसे पहले भी बड़े बड़े वीर आए, चले गए. हमारे बाद भी वीर आएंगे, वो भी अपना काम करेंगे, चले जाएंगे. काम चलता रहता है, काम नहीं रुकता है. हाँ, हम थोड़े फैसिलिटेटर हो सकते हैं, हम थोड़े हर्डल क्रिएटर हो सकते हैं. लेट अस बी फैसिलिटेटर. The responsibility may vary from one post to another post. The note for the successor generally has to be uniform format across the levels. So क्या है, जो काम करने का जो तरीका होना चाहिए वो यूनिफॉर्म रहे तो काम को समझने में आसानी हो जाती है. नेक्स्ट जो है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट. Standard process sheet is a standardized note or template described in para 7.14. It is mechanism used in an office to arrive at a decision. कहने का मतलब कि हर प्रोसेस का एक डिसीजन होता है और डिसीजन का कैसे, किस स्टेज से डिसीजन पहुँचे हैं, किस रास्ते से होकर के डिसीजन पहुँचा है, किस लॉजिक से डिसीजन पर अराइव किए हैं, उस मैकेनिज़्म को जानना ज़रूरी है.
The standard process sheet provides various checkpoints to process cases of repetitive nature. The various details on that fact and figures of each case are provided by the dealing officer. Apart from being a performance tool for dealing officer, it ensures that no important point is overlooked by the senior when the case is submitted. For the senior officers, it also helps in saving time because relevant information needs to be visible in more conspicuous manner. So क्या करना है, मैकेनिज्म होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट जो होता है उसमें मैकेनिज्म मेंशन किया हुआ है कि किस बेसिस पे हम डिसीजन के पास पहुंचे हैं। वो मैकेनिज्म जो है जो आने वाले साहब हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। Standing guard file. Standing guard file is maintained to help in processing and taking a decision in case because it gives the background of the policy procedure of the relevant subject to new officer. जो भी new officer आ रहे हैं उनके लिए एक standing guard file होती है। Standing guard file का मतलब क्या होता है? It helps in processing and taking decision in case because it gives the background of the policy and procedure of the relevant subject to a new officer. It enables quick submission and disposal of cases. It takes the place of voluminous old files put up for reference. It helps the office in locating the various papers having bearing on the subject. So इस तरीके से इनका जो compilation है it consists of 3 parts. स्टैंडिंग गार्ड फाइल जो बनती है इनके कंपाइलेशन के 3 पार्ट है। अ रनिंग समरी ऑफ प्रिंसिपल्स और पॉलिसी और प्रोसीजर ऑन ए सब्जेक्ट विद नंबर एंड डेट ऑफ रिलेवेंस डिसीजन और ऑर्डर्स कोटेड इन मार्जिन, कॉपी ऑफ डिसीजन और रिलेवेंट डिसीजन और ऑर्डर्स कोटेड इन मार्जिन, then model forms of communication to be used in different stages of processing a case. So these are the 3 parts. Number 1 is running summary of the principle of policy. Number 2 is copy of decision or orders referred. Number 3 is model forms of communication. तो ये 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स को जब कहीं क्वेश्चन आए कि स्टैंडिंग गार्ड फाइल के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 जो है रनिंग समरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, पार्ट 2 जो है कॉपी ऑफ डिसीजंस और ऑर्डर्स रेफर टू है, एंड पार्ट 3 जो है मॉडल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन टू बी यूज्ड एट डिफरेंट स्टेजेस करके है। देयर आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडिंग नोट. बिफोर दिस इट वाज स्टैंडिंग गार्ड, हियर इट्स स्टैंडिंग नोट. Standing note is helpful in retrieval of information, important files on the subject to which standing note pertains as it contains reference to important previous files concerning the subject. By referring to a standing note, one can easily have access to important files on the subject and locate them without any delay. So क्या होता है, during the process of processing our file or records, we may need certain standing notes. We may need certain important files. So how to search that important files? By referring to a standing note. By referring to a standing note, one can easily have access to important files on the subject and locate them without any delay. हमें सर्विस का काम करना है without sacrificing the time. Its continuing note explaining among others the history and development of the policy and procedure designed to serve as a complete background material, a brief of preparing replies, induction और training material. ये तीनों चीज़ स्टैंडिंग नोट में होने चाहिए. इसके बाद से प्रेसिडेंट बुक होता है. प्रेसिडेंट बुक किस काम में आता है? It is a register in the prescribed format to keep note of important rulings and decision may having a precedence value for ready reference. So precedent book is a register in a prescribed format to keep note of important rulings and decisions having a precedent value for ready reference. So पहले के जो भी डिसीजन लिए हुए हैं उनको एक प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर में, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, एक रजिस्टर में इसको रिकॉर्ड किया जाता है जिसको प्रेसिडेंट बुक कहते हैं. While taking action on receipts, the dealing officer examines cases with reference to the rules, regulations or guidelines on the subject.
There are, however, instances when one comes across cases where the rules, regulations of the guidelines do not provide a clear and specific answer for the issue under consideration. Precedent book is a valuable tool for quick retrieval of past files. सो प्रेसिडेंस होता है, प्रेसिडेंस का मतलब इससे पहले जो घटित हो चुका है, इससे पहले सिमिलर एक्टिविटी हो चुकी है। तो जब प्रेसिडेंट बुक में क्या करते हैं, इससे पहले सिमिलर एक्टिविटी हो चुकी है तो उसमें जो भी रिकॉर्डिंग है उसको पहले हम देख लेंगे और उसके देखने के बाद से हम उस पर एक्शन लेंगे, इसलिए प्रेसिडेंट बुक का बहुत महत्व है। इसके बाद से है रेफरेंस फोल्डर। रेफरेंस फोल्डर इज ए फोल्डर मेंटेन्ड बाय इंडिविजुअल ऑफिसर्स। ये इंडिविजुअल ऑफिसर्स अपने लिए रेफरेंस फोल्डर मेंटेन करते हैं। इट कंटेन्स सच बेसिक डिटेल्स एज कंसिडर्ड नेसेसरी बाय द ऑफिसर विच आर ऑफ इमीडिएट यूज फॉर प्रोसेसिंग अ केस। फोल्डर कंटेनिंग कॉपीज ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस। हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच ऑफिस में जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जितने भी सर्कुलर आते हैं अपने ESIC हेडक्वार्टर के, जो IP के बेनिफिट से रिलेटेड हैं, उनको एक प्रिंट आउट लेकर के और हम फोल्डर में रख लेते हैं, रेफरेंस फोल्डर में रख लेते हैं। और जब कभी भी डाउट होता है, कोई हमारे दोस्त पूछते हैं कि इसके बारे में कुछ पता है क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, उस रेफरेंस फोल्डर को निकालते हैं, उसमें से फट से उसका फ़ोटो खींचे और उनको भेज देते हैं। तो रेफरेंस फोल्डर का यही काम है। रेफरेंस फोल्डर क्या करता है, इट कंटेन्स कॉपीज ऑफ वेरियस ऑर्डर्स, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस। इट्स ए रेडी रेफरेंस के लिए होता है, कहाँ इधर से उधर ढूंढते फिरेंगे सारे फाइल में। सो एक फ़ोल्डर बना के रख लेते हैं, रेफरेंस फोल्डर, और उसमें जो जो डे टू डे बेसिस की रिक्वायरमेंट है उसको उसमें डाल करके रखते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है एट ए ग्लैंस उसको देखते हैं और देखने के बाद से अपना काम आगे बढ़ा लेते हैं। इसलिए रेफरेंस फोल्डर जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है हमारे लिए। और जो भी ऑफिसर वहाँ से जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो हैंड ओवर करके जाएं, जो नए वाले साहब आ रहे हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। इंडक्शन मटेरियल, ये तो जाना पहचाना टर्मिनोलॉजी आप लोगों को लग ही रहा होगा। इंडक्शन इज समवॉट रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑल्सो। एवरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर इंडक्शन मटेरियल। क्या होता है, जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग होने के बाद से जो अफसर होते हैं उनको इंडक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। इंडक्ट किया जाता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ये बिल्डिंग है, ये सेटअप है, इधर बेनिफिट है, इधर एडमिन है, ये हमारे DD इंचार्ज साहब हैं, ये हमारे JD इंचार्ज साहब हैं, ये हमारे विजिलेंस वाले साहब हैं, ये हमारा कैश वाले साहब हैं, इनका ये काम का नेचर है, ये इनका काम का नेचर है। इंडक्शन जो होता है, जिस दिन वो व्यक्ति उस एरिया में, उस प्रीमाइसेज में इंटर करते हैं, उस दिन उनको ये सब चीज़ें बताई जाती है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है, इधर बाइक पार्किंग है, इधर कार पार्किंग है, इधर लंच करते हैं। ये सब चीज़ें जो होते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग में आती हैं। द इंडक्शन मटेरियल शुड क्लियरली स्पेल आउट द फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल्ड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वेरियस डिविजन्स एंड सेक्शंस विद देयर नेम्स, room number, location, officers in charge, telephone number. The induction material should be revised at periodical intervals so as to keep it up to date. So induction material जो है वो periodically रिवाइज होती रहनी चाहिए, not longer than 1 year. कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि उसमें जितने साहब लोग रिटायर हो गए हैं उन्हीं के मोबाइल नंबर और उन्हीं के नाम अभी तक भी 5 साल 10 साल 15 साल से चल रहे हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम नमस्कार करते हैं और प्रयास ये करना चाहिए कि इसको साल में कम से कम एक बार तो अपडेट कर ही सकते हैं। अब तो टाइपिंग का ज़माना भी नहीं रहा, अब तो सब कुछ कंप्यूटर में स्टोर्ड है, कॉपी पेस्ट करना है, रिप्लेस करना है। कई बार Ctrl+C से और Ctrl+V से काम चल जाता है, कई बार Ctrl+H से भी काम चल जाता है। करके देखिए, बड़ा आसानी से हो जाता है। तो इंडक्शन मटेरियल को अप टू डेट करके रखना चाहिए। इसके बाद से आता है मास्टर सर्कुलर। सर्कुलर का नाम तो हमने सुना ही है, ये मास्टर सर्कुलर है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग नॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स मे रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय देम ऑन ईच सब्जेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड कंसोलिडेट द इंस्ट्रक्शंस ऑन ए गिवन सब्जेक्ट into a self-contained single document in the form of master circular। जैसे हमारे पास मैनुअल है, जैसे हमारे पास CCS रूल्स है,
जैसे हमारे पास DOPT के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, फॉर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर वो एक एक करके उसमें अमेंडमेंट आते रहेंगे, एडिशन आते रहेंगे, और 5 ईयर के बाद से हम क्या करते हैं, उस सारे चेंजेस को कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करके एक फ्रेश मैनुअल निकाल देते हैं। उसी तरीके से सर्कुलर भी आते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन भी आते रहते हैं। डिपार्टमेंट को क्या करना है, डिपार्टमेंट को एक मास्टर सर्कुलर बनाना है, जो पहले वाले जितने भी थे उन सबको मेंशन करते हुए, और आज के डेट में ये पोजीशन है, उसको बोलते हैं मास्टर सर्कुलर। रेफरेंसेस ऑफ सोर्स कंस्ट्रक्शन एंड अमेंडमेंट्स देयर टू मे बी लिस्टेड एंड हाइपरलिंक एट द एंड ऑफ मास्टर सर्कुलर सो एज टू फैसिलिटेट द यूजर टू सी चेंजेस अपडेटेड इंट्रोड्यूस्ड ओवर टाइम। कई बार ऐसा होता है कि न्यू इंडक्शन होता है, न्यू एम्प्लॉई आते हैं, न्यू ऑफिसर्स आते हैं, उनको 5 साल 6 साल लग जाता है ये समझने में कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है। वो आधा काम तो कन्फ्यूजन में ही करते जा रहे हैं। कोई बोल दिया ये सही है तो वैसा कर रहे हैं, कोई बोल दिया वो सही है तो वैसा कर रहे हैं। साहब, डिपार्टमेंट ऐसे नहीं चलता है। डिपार्टमेंट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, क्लियर कट गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसको एडिटिंग करके, मॉडिफाई करके, 2010 का ब्रांच ऑफिस मैनुअल है, 2022 हो गया, 2023 हो गया, और इस 13 साल में उसमें 1300 करेक्शन हो चुके हैं, 1300 अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन नया प्रिंट आउट नहीं हुआ है। अब जब कोई नए साहब आते हैं और उनको ब्रांच में उस ऑफिस मैनुअल अगर पकड़ा दिया जाए और उसके अनुसार वो काम करने लगें, आधे तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेटा चेंज हो चुका है। सो अपडेशन इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। अपडेट हमें करते रहने हैं। वेन एवर न्यू इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स आर इशूड or modification amendment is carried out in any existing instruction on a subject, the relevant master circular may be updated on the above lines. Such updated master circular shall supersede the previous master circular on the subject matter. जैसे ही नया वाला मास्टर सर्कुलर आएगा, पुराना वाला सर्कुलर को वो सुपरसीड कर देगा, और इस तरीके से मास्टर सर्कुलर जो है अपडेट करते रहना है। द मास्टर सर्कुलर मे बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट विद वेल थॉट आउट कंटेंट, डिजाइन एंड पोजीशन प्रोमिनेंटली ऑन द वेबसाइट विद इन द ब्रॉड फ्रेम वर्क ऑफ गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट वेबसाइट्स। सो क्या है, अभी तो डिजिटल ज़माना हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गया है, सब कुछ हमारे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे आ गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, मास्टर सर्कुलर्स को अपने वेबसाइट पर टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहना चाहिए। इससे जब भी कन्फ्यूजन होगा, जब भी डाउट होगा, जब भी कोई डिसीजन लेना होगा, इंस्टेंट रेफरेंस वहाँ पर हम करके और अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, Ministries department may consider setting up a dedicated cell for adoption of system of master circular and for organizing, maintaining, updating information on their website on regular basis. इसके लिए सारे मिनिस्ट्री ने सेटअप कर रखे हैं, और मिनिस्ट्री मोर और लेस आजकल ठीक ठाक काम भी कर रही है। सो अपडेशन जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। हम ही अपडेट नहीं कर पाते अपने आप को। वेबसाइट पे अपडेशन जो है अप टू डेट चल रहा है। जो प्रिंटिंग ऑफ बुक्स है वो धीरे धीरे अबेंडन हो गया है। The progress of implementation of the above measures may be reviewed by Secretary of the Ministry Department regularly in senior officers meeting. So ये जो मास्टर का सर्कुलर का इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जो भी मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग कर लीजिए, क्वार्टरली मीटिंग कर लीजिए, हाफ ईयरली मीटिंग कर लीजिए, ईयरली कर लीजिए, बाई एनुअल कर लीजिए, सारे मीटिंग जो सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होती है उसमें इसको रिव्यू करनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं और इन पर MCQ आते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। बुक में समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप सुनिए, समझिए, पढ़िए, बढ़िया से समझ में आएगा। आज का नीति श्लोक, उदारस्य तृणम वित्तम, सुरस्य मरणम तृणम, विरक्तस्य तृणम भार्या, निस्पृश्य तृणम जगत। अर्थात उदार के लिए धन, शूरवीर के लिए मरण, विरक्त के लिए स्त्री और निष्प्रिय के लिए जगत तिनके के समान है।
कहने का मतलब ये हुआ कि उदार व्यक्ति के लिए जो धन है वो तिनके के समान है, वो उदार पुरुष है, उसके लिए धन संचय उतना मायने नहीं रखता जितना कि धन दान करना मायने रखता है। शूरवीर के लिए मरण, जो शूरवीर होते हैं, जो असली वीर होते हैं, उनको मरण से लेस मात्र भी चिंता नहीं है, तिनके के समान उनके लिए मरण है। क्योंकि जो शूरवीर है वो लड़ने के लिए गया है, और जो लड़ने के लिए गया है वो मार भी सकता है, मर भी सकता है। इसलिए जिनको मरण का डर है वो शूरवीर नहीं, और जो शूरवीर हैं उन्हें मरण का कोई डर नहीं। विरक्त के लिए स्त्री, एक बार जब आप सांसारिक माया मोह को त्याग दिए तो फिर आपके लिए स्त्री नामक जो रत्न है वो तिनके के समान है, अब उसमें आपका मोह माया नहीं लगने वाला है। निष्प्रिय के लिए जगत तिनके के तुल्य है। निष्प्रिय उनको कहा जाता है, विरक्त लोग हो जाते हैं ना, जिनको इस देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। साधु संत से थोड़ा सा आगे कह लीजिए, कुछ लोग विरक्त हो जाते हैं, उनको इस देश दुनिया से मतलब नहीं है, सारी अपनी धन संपत्ति दौलत समाज छोड़ करके वो जंगल में अपने तपस्या में चले जाते हैं। तो जो विरक्ति धारण कर चुके हैं, जो निष्प्रिय हो चुके हैं, जिनके पास कोई लोभ लालच तृष्णा बचा ही नहीं है, उनके लिए ये जगत जो है तिनके के तुल्य है। तिनके का मतलब क्या होता है? घास के तुल्य है। घास का एक जो टुकड़ा होता है उसको तिनका कहते हैं। सो एक तिनके के तुल्य है। इसलिए ये नीति श्लोक हमारे लिए एक बड़ा ही प्रेरणादायी है। उदार के लिए धन, शूरवीर के लिए मरण, विरक्त के लिए स्त्री और निष्प्रिय के लिए जगत तिनके के तुल्य है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।